ناظرین، میں سید سہیل آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل بریکنگ نیوز میں۔ آئیے سرخیوں پر ایک نظر کرتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے مزید 40 فلسطینی شہید۔ یمن کا اسرائیلی ایئرپورٹ کو ہائپر سونک فلسطین 2 میزائل سے نشانہ۔ کینسر کا خاتمہ قریب، سائنسدانوں نے انقلابی ویکسین تیار کر لی۔ ریٹائرمنٹ کا دباؤ، مودی کی ناکام پالیسیوں کی بدولت بی جے پی کے لیے بوجھ بننے لگا۔ راہل گاندھی کا حکومت پر حملہ، میک ان انڈیا محض ایک نعرہ ہے، ہم صرف چینی پرزے جوڑ رہے ہیں۔ مودی راج میں بھارت میں بڑھتا جنسی استحصال۔ حیدرآباد میں شدید بارش سے سڑکیں تالاب میں تبدیل، ٹریفک جام سے عوام پریشان۔ تلنگانہ میں ہر درخواست گزار کو ای چپ پاسپورٹ حاصل ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی سرخیاں، آئیے اب تفصیل سے خبروں کو جانتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے مزید 40 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، جس دوران مزید 40 فلسطینیوں کی شہادت کی تصدیق ہوئی ہے۔ دوسری جانب امریکی میڈیا کا بتانا ہے کہ امریکہ، قطر اور مصر نے غزہ میں جنگ بندی کی نئی تجاویز پیش کی ہیں، جبکہ قطر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ حماس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ طویل جنگ کے لیے تیار ہیں، غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے تحت تمام یرغمالیوں کی رہائی کی پیشکش کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ جنگ بندی مذاکرات میں معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں مستقبل میں عبوری جنگ بندی پر رضامند نہیں ہوں گے۔ یمن کا اسرائیلی ایئرپورٹ کو ہائپر سونک فلسطین 2 میزائل سے نشانہ۔ یمن کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے کامیابی سے اسرائیل کے بین گوریون ایئرپورٹ کو ہائپر سونک فلسطین 2 میزائل سے نشانہ بنایا، جس سے بڑے پیمانے پر شہریوں کا انخلاء اور پروازیں معطل ہو گئیں۔ ایرانی خبر ایجنسی مہر کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کی جانب سے حملے کی تصدیق کی گئی، جس میں تل ابیب کے قریب لود کے مقبوضہ علاقے میں واقع بین گوریون ایئرپورٹ پر ہائپر سونک بیلسٹک میزائل حملے کی ایک بڑی فوجی کارروائی کا اعلان کیا گیا۔ مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ساری نے بتایا کہ فلسطین 2 میزائل نے اپنے مطلوبہ اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اس حملے کی وجہ سے لاکھوں اسرائیلی آباد کار پناہ گاہوں میں بھاگ گئے اور ایئرپورٹ پر پروازیں معطل کر دی گئیں۔ کینسر کا خاتمہ قریب، سائنسدانوں نے انقلابی ویکسین تیار کر لی۔ کینسر کے علاج کے میدان میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں یونیورسٹی آف فلوریڈا کے سائنسدانوں نے ایک تجرباتی ایم آر این اے ویکسین تیار کی ہے، جو جسم کے مدافعتی نظام کو ٹیومرز کے خلاف مؤثر طریقے سے متحرک کرتی ہے۔ تحقیق معروف جریدے نیچر بایو میڈیکل انجینئرنگ میں شائع ہوئی ہے۔ اس تحقیق کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ویکسین کسی مخصوص کینسر ٹیومر پروٹین کو ہدف نہیں بناتی، بلکہ یوں مدافعتی نظام کو متحرک کرتی ہے جیسے وہ کسی وائرس سے لڑ رہا ہو۔ ویکسین نے جب امیون چیک پوائنٹ انہیبیٹرز، ایک معروف امیونوتھراپی دوا کے ساتھ استعمال کی گئی، تو چوہوں میں بہت مضبوط اینٹی ٹیومر رد عمل دیکھا گیا۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ ویکسین نے ٹیومرز میں PD-L1 نامی پروٹین کی مقدار بڑھا دی، جس سے وہ مدافعتی علاج کے لیے زیادہ حساس ہو گئے اور جسم نے زیادہ مؤثر رد عمل دیا۔ تحقیقی ٹیم کے سربراہ، بچوں کے کینسر کے ماہر ڈاکٹر الیاس سیور نے کہا کہ یہ ایک نیا اور امید افزا طریقہ علاج ہے، جو مستقبل میں کینسر کا علاج جراحی، شعاع، ریڈیئیشن، کیموتھراپی کے بغیر بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ ریٹائرمنٹ کا دباؤ، مودی کی ناکام پالیسیوں کی بدولت بی جے پی کے لیے بوجھ بننے لگا۔ بھارتی جنتا پارٹی بی جے پی میں قیادت کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے اور پارٹی کے اندرونی خلفشار کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نریندر مودی پر ریٹائرمنٹ کے لیے دباؤ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق مودی کی عمر 75 برس کے قریب پہنچنے کے بعد بی جے پی اور بھارتی عوام کے اندر سے ان کی ریٹائرمنٹ کے مطالبات زور پکڑنے لگے ہیں۔
पार्टी में क़ियादत के बहरान और नज़रियाती तकसीम ने सूरत-ए-हाल को मज़ीद संगीन बना दिया है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और साबिक मरकज़ी वज़ीर सुब्रमण्यम स्वामी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि मोदी को सितंबर में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए चीन नहीं जाना चाहिए। बीजेपी के अंदर जारी क़ियादत का बहरान और बढ़ते इख्तिलाफ़ात भारतीय सियासत के मंजरनामे पर गहरे असरात डाल रहे हैं। पार्टी के कई सीनियर रहनुमा अंदरूनी पॉलिसियों और मोदी के तर्ज़ हुक्मरानी पर सवालात उठा रहे हैं, जिससे मुस्तक़बिल में पार्टी के इस्तेहकाम पर भी सवालिया निशान लगने लगा है। राहुल गांधी का हुकूमत पर हमला, मेक इन इंडिया महज एक नारा है, हम सिर्फ चीनी पुर्जे जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने यूट्यूब वीडियो और एक्स पोस्ट के जरिए कहा कि हिंदुस्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स सनत चीन पर मुनहसिर है। मेक इन इंडिया सिर्फ असेंबलिंग है, असल मैन्युफैक्चरिंग ना पॉलिसियों में है ना जमीन पर। राहुल गांधी ने हाल ही में एक फैक्ट्री का दौरा किया, जिसकी वीडियो उन्होंने यूट्यूब पर जारी की है। वीडियो में वो एक टीवी असेंबलिंग यूनिट का जायजा लेते नजर आते हैं। फैक्ट्री के कारकुन उन्हें बताते हैं कि डिस्प्ले, मदरबोर्ड, एलईडी लाइट्स, बैकलाइट फिल्म और यहां तक के प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी चीन से आते हैं। सिर्फ बैरूनी डब्बा या प्लास्टिक की कैबिनेट हिंदुस्तान में बनती है, वो भी महदूद पैमाने पर। राहुल ने सवाल किया, इलेक्ट्रॉनिक्स में हिंदुस्तानी क्या है, और खुद ही जवाब दिया, सिर्फ प्लास्टिक। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ चीनी पुर्जे जोड़ रहे हैं और उसी को मेक इन इंडिया का नाम दे रहे हैं। असल मैन्युफैक्चरिंग कहीं और हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मेक इन इंडिया दरअसल असेंबल इन इंडिया है। अब यहाँ सॉफ्टवेयर डल रहा है। बट बॉस एक बात, अगर चाइनीज कंपनीज आपको मारना चाहे या तो 2 मिनट में मार सकते हैं। एब्सोल्युटली दे कैन डू इट। दैट्स व्हाई प्राइस गिराएंगे, खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आर टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइना। नॉट ओनली टीवी, इट्स मोबाइल, इट्स अबाउट लैपटॉप, एवरीथिंग। बिकॉज डिस्प्ले मोबाइल में भी लगता है, डिस्प्ले लैपटॉप में भी लगता है। इवन एप्पल डोंट हैव देयर सेमीकंडक्टर फैक्ट्री फॉर डिस्प्ले, दैट इज व्हाई दे आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय फॉक्सकॉन। चाइना में बनाते हैं और यहाँ तमिलनाडु में फॉक्सकॉन कर रही है या टाटा करने वाला, वो भी क्या कर रहा है, असेंबल ही तो कर रहा है। आईफोन डिस्प्ले बाहर से आ रही है, मदरबोर्ड बाहर से आ रहा है, डब्बा लोकल ले रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं। जो आप कर रहे हो वही कर रहा है। Absolutely, everyone is assembling their TVs in India, not 100% manufacturing. Anyone, you name it, all the top people, top brands. Dependency जैसे आपने बोला, it is there on China. उन्होंने शॉर्टेज कर दी तो इवेंचुअली आपके लिए आप मेक इन इंडिया को एक्चुअली असेंबल इन इंडिया कहना चाहिए। currently it is happening like that. Everyone is doing. If you talk about any industry, if you talk about solar also, solar cells are getting import from China only. Who is manufacturing solar also in India? Nobody. तो एक्चुअली चाइना के साथ कंपटीशन नहीं हो रहा है। If the government is going to support to benefit and manufacture these important components in India, then we can do it immediately. We have बट the ये होता courage. क्यों नहीं? I need a leverage amount of capital. I don't have any unsecured capital. The banks cannot support me. Government is giving a CGTMS scheme of 10 crore rupees to the startup. Tell me the whole infrastructure and everything. Nobody can start up this in 5 crore, 10 crore, 15 crore, 20 crore. How much money? If I have to invest semiconductor factory, I need at least $2 billion, $3 billion. I can invest certain amount, but rest of the money I need some support from government. मोदी राज में भारत में बढ़ता जिनसी इस्तेहसाल। भारत में जिनसी ज़ियादती के बढ़ते हुए वाक़यात ने औरतों और बच्चों की इज्जत को गैर महफूज बना दिया है। बीजेपी की इंतहा पसंद हिंदुत्व सोच ने भारत को जिनसी ज़ियादती का गढ़ बना दिया है, जबकि मोदी सरकार बच्चों से जिनसी ज़ियादती जैसे हसास मामलात पर फौरी कार्रवाई करने में नाकाम दिखाई देती। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक तमिलनाडु के जिला तरूलूर में 10 साला बच्ची को स्कूल से घर वापसी के दौरान जिनसी ज़ियादती का निशाना बनाया गया, मगर पुलिस ने 5 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया। अमन व अमान की बिगड़ती सूरत-ए-हाल पर हिज़्न इख्तिलाफ ने वज़ीर आला M.K. स्टालिन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। यूनिसेफ रिपोर्ट 2005-2013 के मुताबिक भारत में 43% लड़कियां 19 साल की उम्र से पहले ही जिनसी इस्तेहसाल का शिकार हो जाती हैं। हैदराबाद में शदीद बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील, ट्रैफिक जाम से आवाम परेशान। जुमा के रोज हुई शदीद बारिश के बाद हैदराबाद के कई इलाकों में हफ्ता को भी सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सड़कों पर कीचड़ जमा होने के बाइस गाड़ियां सुस्त रफ्तारी से चल रही हैं, जिसके नतीजा में कई मकामात पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गया।
कुतुबुल्लाहपुर के जेडी मिटला डिपो से सोवरिरम मिला रेडी हॉस्पिटल तक तकरीबन 4 किलोमीटर तवील सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। इसी तरह कोम्पली नेशनल हाईवे पर जारी फ्लाई ओवर के तमीरी काम के लिए खोदे गए गड्ढों में बारिश का पानी जमा हो गया, जिसे प्रोकुलियन मशीन के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। तेलंगाना में हर दरखास्त गुजार को ई-चुप पासपोर्ट हासिल होगा। तेलंगाना में जिस किसी ने नए पासपोर्ट के लिए दरखास्त दायर की है, उन्हें अब इलेक्ट्रॉनिक चुप वाला पासपोर्ट हासिल होगा। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद जे स्नेहाजा ने बताया कि वजारत खारजा ने ई पासपोर्ट की इजराई को कई शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया है। हैदराबाद भी उनमें शामिल है। ये वजारत खारजा की पहल है कि अवामी खिदमात को बेहतर बनाने असरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। ई-चुप पासपोर्ट्स की इजराई इसी समत में एक कदम है। कहा गया है कि ई-चुप के जरिए पासपोर्ट की सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम किया जाएगा। कड़पा के 2 डिवीजन में आज बड़ी तादाद में वीएस और कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हुए। रुकन असेंबली कड़पा माधवी रेड्डी और जिला सदर तेलुगु दुश्मन पार्टी कड़पा श्रीनिवासलो रेड्डी ने उन्हें पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में तेलुगु देशम कायदीन और कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद थे। మాధవి రెడ్డి గారు చీఫ్ విప్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. అలాగే రెండో డివిజన్ కార్పొరేటర్ రెడ్డి గారు सुनहरा उंधुरा प्रदेश पाक उंधुरा प्रदेश प्रोग्राम के तहत जिला एसपी कड़पा अशोक कुमार ने आज एसपी ऑफिस में प्लास्टिक से पाक समाज पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक का इस्तेमाल समाज के लिए खतरा बन चुका है। प्लास्टिक के इस्तेमाल से माहौलियात पर बुरा असर पड़ रहा है, जिसे खत्म करने के लिए आवाम को उगे आना होगा। आवाम को प्लास्टिक अशिया के बजाय दूसरे मुतबादिल चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस मौके पर एसपी ऑफिस में प्लास्टिक बैग वगैरह की सफाई की गई। इस मुहिम में उनके साथ इसके दीगर ओहदेदार मौजूद थे। नाज़रीन, खबरें यहीं पर इख्तिताम होती हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल आपसे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।